तो दिस होमवर्क में म्यूएस was 0.4. So we have to find out limiting friction first. Then we can see how much we can compare with the applied force. So whichever is less, that will be the answer. So let's see limiting friction. Normal reaction कितना होगा? N will be equal to mg. Horizontal surface पर अगर ब्लॉक है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? मास into acceleration due to gravity. मास कितना दिया? 2. G we can take it 10 high. It was given 10. So 20 Newton is the normal reaction of the surface. Now this will decide the limiting friction. Maximum static friction or limiting friction Fs max is equal to µs into n. So we can just find out Fs max. µs कितना है? 0.4. नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया हम लोगों ने 20. So this is 8 Newton. Now 8 Newton is the limiting friction. Convinced? तो ये तो हो गया फार्मूले से limiting friction. But now applied force is less. 6 Newton ही है. So what will be the answer of friction? कितना होगा फिर ये? बोलो. Will it be 6 or will it be 8 or will it be 2 Newton? क्या आंसर होगा? 6, 8, 2. कितना होना चाहिए बोलो? Sir, 6 Newton. 6 Newton, sir. Okay. Okay, answers coming are 6. Why not 8 Newton? If we take 8 Newton, what is the problem? Sir, it will be greater than the applied force, and that's not possible. Then it will be unbalanced forces. Yes. It will start moving. It will start moving this side, है ना? Unbalanced force 8 Newton इधर है. Common sense से हम बोल सकते हैं. It cannot be 8 Newton. It means Yes, sir. whatever the applied force is there, if you write 8 Newton, है ना? तो क्या होगा? It should start moving towards left. You are pulling it right. It is It is going towards left, which is never possible. Either it will go in the direction of applied force, or it will remain at rest. So what is happening? We are applying less force than the limiting friction. So this much force will be coming into action. 6 Newton only. So applied force F is less than Fs max. Therefore, block will be at rest. So क्या होगा? F net should be 0. इसको हम पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं. चलो डायरेक्ट नहीं लिखते. F net में कौन सा फोर्स है? ये अप्लाइड फोर्स है प्लस फ्रिक्शन फोर्स है. दिस इज द बैकवर्ड फोर्स इज द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0. F is the friction force. So friction force is equal to minus applied force. F कितना है? That is 6 Newton. F is 6 Newton. Therefore, friction force 6 Newton in opposite direction. ठीक है. वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते थे शॉर्टकट में, but I have given you full solution of this. ठीक है. So that's how. So this question is very important. In fact, यहाँ पर what is important? Most of the students write 8 Newton, which is not correct. It is self-adjusting nature. 6 Newton in opposite direction. ठीक है. Any doubt in this? Some of you could not do this question. Any doubt? Sir, I have a doubt. Yeah. I don't understand why the formula shows a different answer and the net force applied is different, so the final answer is different. If
if the friction was already 6 Newton, then why did not the formula show 6 Newton? Which formula? Sir, Which formula FS shows max 6 Newton? formula. Fs max, when we have written, when we apply this much force, then only this much friction will come into action. You have written there, Yes, sir. and formula is for limiting friction. It is not limiting stage is not reached so far. If you don't Okay. apply the force, then friction force will be coming into zero, will be zero, but limiting friction will remain 8 Newton. It will come into action when we apply the 8 Newton. जब हम 8 Newton लगाएंगे, तब it will be Fs max, that will be 8 Newton. Till then it will be less. If you apply less force, it will be less friction. That's what we have written. Self-adjusting nature. लिखा हम लोगों ने self-adjusting nature. Yes, sir. All right. Because, sir, ठीक है? I solved it and I understood that the formula is giving 8 Newton, but because of all of the laws, we can say that it is already 6 Newton. So I was a little bit confused that why the formula showed 8 Newton. Yeah, now it's okay. Now Yes, it's sir. okay. Yes, sir. Okay, चलो ठीक है. Anybody else having any doubt in this? No, sir. Okay. Generally ये question competitive examination में भी आता है. It can be asked in your examination test and all, JEE and NEET. Everywhere it is important because it is not the direct question, not the formula based question. You have to do the logical thinking here. All right, chalo. So this was one of the homework. Okay. This was the other homework. इसमें देखो यहाँ पर M1 is there 2 kg, M2 you have to find maximum value of M2, so that both the blocks remains at rest. So let's see यहाँ पर क्या होगा. What will happen if this M2 will produce tension because of gravitational force. Gravitational force will be acting on this, which will tend to pull it down. But this friction, यहाँ पे जो friction है, that will not allow it to go down till certain value of its mass is reached. ठीक है? So because of gravitational force M2, there will be tension. Tension will be because of friction, gravitational force and friction both. There will be tension now, and mass also. These all will create the tension here. This tension will be transmitted here, and this tension should be equal to Fs max now, because maximum value के साथ maximum tension will come, and maximum tension के साथ maximum static friction will come. तो ये जो tension होगा, that will be equal to Fs max, because we are dealing with the maximum. From figure, T will be equal to Fs max. Okay. And also equation मैंने also here you see at block M2G, both will be equal. T will also be equal to M2G. Equation number 1 and 2, left side is same, therefore equating 1 and 2, what we will have, M2G is equal to Fs max. तो Fs max कितना होगा for this block? M1 के लिए फ्रिक्शन होगा, M2 तो हैंग कर रहा है, उसके लिए फ्रिक्शन नहीं होगा. तो Fs max for M1 will be mu s into M1G. Okay, mu s into n, friction के formula, limiting friction is mu s into n. N will be how much? M1G, because this will apply the force M1G on the horizontal surface. That will be equal to normal reaction here है ना, यहाँ पे बना सकते हैं हम. Normal reaction will be
इक्वल टू m1g। लेफ्ट साइड में क्या है, m2g है, तो g विल गो, m2 कैन बी कैलकुलेटेड, म्यूएस कितना दिया आपको, 0.4 इज गिवन, g10 एक मिनट, m1 g कैंसिल हो गया, m1 is 2 kg, it is 0.8 kg, so you can have up to m2 can be 0.8 kg. If you apply more, it will start sliding. If you apply less than 0.8, then it will remain at rest. Clear to everyone? Yes, sir. Okay, note down. This question is also good question. This was asked somewhere in examination. So some of you have done it correct, but some of you have done it mistake in this also. Okay. Sir, Yeah. the value of g that was given in the first question, Mhm. it was only there to confuse us, right? First question means before that, or in Yes, this sir. question. No, In sir, this the question, first. you are telling, No, sir, the first question. yeah, they will give you all the values. Sometimes you may need it. Sometimes you may not need it. Yeah. So they will give you all the most of the constants will be given to you. So you may use it or you may not use it. Okay, sir. Not only G, sometimes they will give you some extra information. You will be keep on thinking about that. Some extra values they give you, particularly in competitive examination. So you may think, "Arey, this I have not used." It Yes, may sir. happen like that. Okay. Yes, sir. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए अपने। ये देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू एक्शन। देखो सिमिलर टू दैट अभी हमने किया, उसमें रेस्ट पर था, हियर इट वाज एट रेस्ट, नो मूवमेंट वाज देयर, नाउ इट इज मूविंग हियर, तो ये एफ के विल बी कमिंग इनटू एक्शन। यहाँ पे एफ नेट से इक्वेशन बना सकते हैं, टी माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, लाइक दिस इक्वेशन विल बी मेड if it is accelerated motion. If it is constant motion, A will be 0. So let's see what is this. Solve example number 9. What is the acceleration of block and trolley system shown in the figure? This figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04. जब व्हील लगे होते हैं ना तो कम हो जाता है, coefficient of kinetic friction will be lesser. What is the tension in the string? Take G10. Neglect the mass of the string. तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, हियर आल्सो न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, दो इक्वेशन मिल जाएंगी, टी एंड ए विल बी अननोन, यू कैन सॉल्व इट फॉर टी एंड ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। तो पहले ये निकाल लेंगे नॉर्मल रिएक्शन, एम जी एन, तो कितना वेट है इसका, 20 kg is given है, यहीं पे लिखा हुआ है। एन विल बी एम जी 20 इंटू जी, जी 10 है, can you see 20 kg is here, this one, 20 into 10 is 100 kg, 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 20 into 10 is 1
200 न्यूटन। एफ के निकाल सकते काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.04 into 200, that is coming how much, 8. Now equation बना लीजिए यहाँ पर, for 3 kg ब्लॉक के लिए बना लीजिए ये 30 3g, 3g मीन्स 30 हो जाएगा, माइनस t इज इक्वल टू 3a, 30 minus t is equal to 3a. Equation 1. For 2 kg, 20 kg सॉरी, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो ब्लॉक है उसकी इक्वेशन बताएंगे आप लोग, बोलिए उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, टेल मी द इक्वेशन। ये कहाँ से बना रहे हैं हम लोग? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से। बोलिए फॉर 20 kg ब्लॉक क्विकली, क्विक आंसर दीजिए। लेट मी आस्क यू वन बाय वन। चलो बीच में से पूछता हूँ। हर्षित, टेल मी इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड लॉ फॉर 20 kg। क्विक respond quickly, Harshit, are you there? Yes, sir. Can you tell me the question जल्दी से? एफ नेट में कौन सा फोर्स लेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डील कर रहे हैं ना, वी आर डीलिंग इन द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं। 20 kg विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही काउंट होंगे। बोलिए दिख रहा है डायग्राम में, तो वी कैन सी द हॉरिजॉन्टल फोर्स है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है वो पहले लिखेंगे। बोलिए फटाफट, फास्ट हर्षित। क्विक रिस्पॉन्ड, डोंट टेक दैट मच टाइम। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की राइट? इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग? So right. राइट कैसे जाएगा? ये जब नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा ना, राइट। हाँ सॉरी, राइट जा रहा है, ठीक है। राइट की डायरेक्शन में फोर्स बताइए, बोलिए कौन सा फोर्स लेंगे? राइट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स उसको पुल कर रहा है? क्विक, दिख रहा है कोई फोर्स उसमें? कैन यू सी इट? कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको? इसमें ध्यान से देखो, So राइट साइड kinetic. में कौन सा फोर्स? फोर्स काइनेटिक तो एनर्जी होती है। फोर्स दिख रहा है, ये टेंशन इज द फोर्स टी, कैन यू सी? तो ये Yes, sir. फोर्स जिस तरफ जाता है वो वाला फोर्स, माइनस अपोजिट फोर्स है कोई? बोलो, इसमें अपोजिट फोर्स दिख रहा है ब्लॉक, इस मास के ऊपर अपोजिट Yes, फोर्स sir. दिख रहा है, कौन सा है? एफ के। ये देखो फ्रिक्शन, अभी तक हम लोग फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था पिछले जितने क्वेश्चन थे। नाउ फ्रिक्शन इज देयर, इट विल अपोज, जो भी जितना भी होगा इट विल अपोज एफ के Yes, sir. इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज हाउ मच? मास दिया नहीं यहाँ पे, कांट यू सी? अभी क्वेश्चन भी लिखी थी हम लोगों ने, So 20. 20। एक्सीलरेशन रिमेन सेम बिकॉज इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड रहेगी, जितने एक्सीलरेशन ए लेंगे इधर, इसका भी ए लेंगे फॉरवर्ड में। तो इक्वेशन 1 और 2 को भी सॉल्व कर लेना आप लोग। एफ के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी निकाली हमने ऊपर से? ये 8 न्यूटन। नाउ योर ड्यूटी इज टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन and get value of t and a which is asked. दोनों पूछा है। Making the equation was the main issue that we did it. ठीक है, अभी इसमें एक ऐड कर दो पहले, तो ऐड करने से ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 22, और राइट साइड में कितना आएगा? 23a। तो a इक्वल टू 22/23, 0.9 के आसपास आएगा। लेट अस सी द आंसर, कितना है? 0.96। ठीक है,
और ये वैल्यू फिर इसमें इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, 0.96 पुट कर दो यहाँ पर और सॉल्व कर लो t के लिए। गॉट इट? ठीक है कि नहीं? हो जाएगा? दिस यू कैन कंप्लीट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट है तो जस्ट आस्क क्विकली। solve 1 and 2 for a and t, which was asked. All right. देखो ये भी एक सॉल्व एग्जांपल है। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन of train in which the box lying on the floor will remain stationary, given that coefficient of static friction between the box and train's floor is 0.15. So suppose train is going like this, right side में जा रही ट्रेन है, ये किधर जा रही? राइट। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट। तो इनर्शिया से it will have the tendency to slide back, but friction will take it forward. Friction will take it forward. ये sliding, जैसे ट्रेन ये जैसे आगे जाएगी ये, it will move in this direction. तो ये inertia से it will tend to fall back, but friction will pull it forward. तो maximum acceleration के लिए now Fs max will be used. Fs max will provide it forward force. यहाँ पे लिखो Fx max will be okay, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, since box has tendency to slide back, therefore friction will be in forward direction. Therefore force is equal to ma. तो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, वही तो उसको आगे लेके जा रहा है। Fs max is equal to ma. तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है? μs into mg, μs into n, n क्या होगा? mg, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मास मास गेटिंग कैंसल्ड, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा? μs into g, μs is how much? 0.15, g if we take 10, it will be 1.5 meter per second square. That much fast train can go. If it is moving more with more acceleration, the block will start sliding, falling back, sliding back, because inertia से ये तो पीछे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन उसको आगे लेके जा रहा है, बट फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है। दिस इफ इट इज क्रॉसिंग, है ना, acceleration is crossing beyond that, box will start sliding back. होता है कभी कभी बहुत फास्ट ट्रेन एक्सीलरेट होती है, you find that some of the objects are falling from the seat, sliding back from the seat and fall. You must have observed when a train is accelerating very fast, objects tend to fall because friction is not able to carry them forward. Whatever the requirement is there, less than that it is there because of high acceleration. Friction is not able to cope up with the train. All right. So this Yes, much sir. is the limit of acceleration. इससे ज्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया?
फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अभी डायरेक्ट तो कोई फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगा ही नहीं रहा, नो फोर्स, नो डायरेक्ट फोर्स इज देयर, नोबडी इज पुलिंग द बॉक्स, इट इज केप्ट ऑन द सरफेस, सरफेस का फ्रिक्शन ही उसको आगे लेके जा रहा था, तो ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज देयर हियर। नाउ यू सी फ्रिक्शन फोर्स इज इन पावर डायरेक्शन। इंटरेस्टिंग ना, हम लोग बोलते फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, बट यहाँ तो सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ओनली टेकिंग इट फॉरवर्ड, friction is only taken forward, it is not opposing the motion, it is supporting the motion of the box, it is इसीलिए हम लोग लिखते हैं it is opposing the sliding tendency, sliding tendency oppose कर रहा है friction, है ना, उसकी sliding tendency किधर है, इधर है, इसलिए इधर लग रहा है वो, और वही उसको आगे लेके जा रहा है। getting that? Sliding tendency is opposing, the sliding tendency is backward. And what happens when the brakes are applied? When brakes are applied, तो क्या होगा? Now box will have the tendency to move forward because of inertia. So friction will be backward when the brakes are applied. Suddenly brakes लगाते हैं तो objects start sliding forward. All right. Yes, sir. जैसे कार वगैरह में ऊपर बांध के रखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, है ना, ब्रेक लगाएंगे तो आगे जो लगेज होता है it will tend to move forward because friction is not that much enough to hold them back, उसको टाई करके रखना पड़ता है, और जब एक्सीलरेट करते हैं tend to go back, friction is not sufficient to carry it forward, so they have to tie, है ना, that लॉरी वगैरह में, कार वगैरह में जो ऊपर लगेज कैरियर होता है ना, उसमें भी बांध के रखना पड़ता है because not friction is not sufficient to hold them. ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्व एग्जांपल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम आई थिंक आगे क्वेश्चन है वो, हाउ मच फास्ट ट्रेन शुड एक्सीलरेट, आर ट्रेन इज एक्सीलरेटिंग विद सर्टेन एक्सीलरेशन, तो हाउ मच इज द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन विल बी एम ए, तो अगर एक्सीलरेशन कम है तो फ्रिक्शन में भी लेस, it may not be reaching to the limiting friction. Such question is there somewhere. यहाँ तो limiting situation थी, इसलिए हमने यहाँ पर fx max लेके a कैलकुलेट कर लिया। चलो आगे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, आई थिंक, है ना, दिस क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नंबर 35, व्हाट इज देयर ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, हियर इज द ब्लॉक whose mass is 15 kg is kept here, is placed on the lorry, placed on the long trolley, in fact ये long trolley है, ऐसा ट्रॉली बना देते हैं उसका, ये ट्रॉली है, ठीक है, उसके व्हील भी थोड़ा मार्क कर देते हैं। ऑलराइट, लॉन्ग ट्रॉली, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली इज 0.18, तो म्यू एस इज 0.18, ऑलराइट, 0.18, द ट्रॉली एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट with the acceleration 0.5, okay, इधर एक्सीलरेट कर रहे हैं, we are just taking acceleration this side, कितना एक्सीलरेशन है 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलराइट, for 20 seconds, t is equal to 20 seconds, ऑलराइट, and then move with the uniform velocity, after that uniform velocity, है ना, ठीक है, discuss the motion of block as viewed by the stationary observer on the ground, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, वो देख रहा है ट्रॉली ऐसे जा रही है, तो ये ब्लॉक का मोशन कैसे होगा, है ना, एंड ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जर्वर है बी, और ट्रॉली के साथ जा रहा है, वो बॉक्स के बारे में क्या बताएगा, बॉक्स रेस्ट पर है क्या, ये तो सडनली इसको तो दिखेगा बॉक्स स्लाइड करता हुआ आगे जाता हुआ, है ना, स्लाइड मे नॉट बी स्लाइडिंग, बट ट्रॉली जा रही है तो ये
सडनली इसके साथ पहले तो जाएगा, बाद में हो सकता है धीरे धीरे स्लाइड भी करे जब एक्सेलेरेशन नहीं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो और फोर्स कैलकुलेट कर लो एमए से। किधर लगेगा फोर्स? लिमिटिंग ये इट विल हैव टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड विद द फोर्स एमए, इनर्शियल फोर्स बोल सकते हैं इसको। और फ्रिक्शन एमए निकाल लो और लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉसिबल कितना है, एफएस मैक्स निकाल लो, म्यूएस इनटू एन। तो अगर एमए इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये आराम से ट्रेन के साथ चला जाएगा विदाउट स्लाइडिंग। तो दिस पर्सन विल से कि ये भाई ये रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर रहेगा जी। ग्राउंड वाला बोलेगा ओके इट इज गोइंग अलोंग विद द ट्रॉली। क्या बताया मैंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, ठीक है, और फोर्स कैलकुलेट करो। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, है ना, इनर्शिया की वजह से पीछे फोर्स लगता है उसमें, एक्सेलरेशन आगे होता है, इनर्शिया की वजह से वो पीछे जाने की टेंडेंसी होती है एम ए, उसकी वजह से फ्रिक्शन आगे आता है। तो एम ए निकाल लो और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। इफ एम ए इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, box will not slide back, it will go along with the trolley peacefully without disturbing any of the observer। क्लियर? तो ये कोशिश करो करने की, try to solve yourself since it is the textbook problem, you are supposed to know, everybody is supposed to know, I have given you sufficient hint। This is your homework number 1 for today। All right, shall we move on to the next one? Yes, sir. Okay। चलो 35। ये क्वेश्चन तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। 36 इज, ये थोड़ा सा, इसमें भी वही सिचुएशन है, देखो जो ऊपर वाली सिचुएशन थी ना, बट यहाँ पे व्हाट यू फाइंड इज एम ए विल बी मोर देन एफ एस मैक्स, तो ये पीछे स्लाइड करना शुरू करेगा धीरे धीरे। इसका जो एफ नेट होगा, एम ए एफ नेट जो होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, बैकवर्ड फोर्स माइनस, एक मिनट, जस्ट लेट मी explain the question to you first। The rear side of the truck is open and box of 40 kg. Mass is placed 5 meter away from the open end। ये distance 5 meter है, ठीक है। And coefficient of friction between the box and surface is 0.15, mu s is 0.15, ठीक है। On the straight road, the truck starts from the rest and accelerates with the 2 meter per second square is, at what distance from the starting point does the box fall of the truck? Ignore the size of the box। बॉक्स को छोटा सा समझ लो, तो कितने टाइम के बाद ये नीचे गिर जाएगा, धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज मोर, आई मीन दिस truck is accelerating faster than the limiting friction generated। I mean, acceleration is more, backward force due to inertia is more as compared to fs max। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस होगा, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बैकवर्ड एक्सेलरेशन। Backward acceleration will be net backward force upon mass of the box। Net backward force क्या होगा? ma is the acceleration of the truck
80 कर देते हैं, 80 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 80 कर दो माइनस एफएस मैक्स, एफएस मैक्स अपने आप निकालो म्यू इनटू एमजी से एम, ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ। ए बॉक्स है ना, तो बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स मिल गया, तो ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए बॉक्स इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5 है और यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। एफ एस मैक्स कितना लिखेंगे बताइए, हु विल टेल हाउ मच एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, नहीं एफ एस मैक्स विल बी रिटन, बोलो एफ एस मैक्स कितना लिखना पड़ेगा हमें, हु विल टेल? और mg, No, just a second. let me ask Disha, can you tell me FS max how much? Quick answer, are you there? Yes, जल्दी से sir. बोलिए दिशा, FX max क्विक आंसर, कितनी बार तो लिखा हम लोगों ने FX max लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक ही तो फार्मूला होता है, फन फार्मूला, why do you forget so quickly? mu s into n, n will be mg, मास दिया हुआ है बॉक्स का, तो FX max will be mu s into mg, ये पुट करके सॉल्व करना है, m remains the box mass of the box, एक ही तो ऑब्जेक्ट है ना, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद कितना है, ये दिया है 5 मीटर, ये गैप जो है 5 मीटर दिया है, यहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको कितनी देर में वो नीचे बैक साइड से फॉल करेगा, बिकॉज व्हेन इट मूव्स फास्टर फ्रिक्शन इज लेस, स्लोली इट विल स्लाइड बैकवर्ड एंड डाउन, तो टाइम मिल जाएगा। उस टाइम में इस एक्सेलरेशन से, दिस इज द नाउ ट्रक का एक्सेलरेशन है, उस टाइम से ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, हाफ ए ट्रक इनटू टी स्क्वायर, तो इधर बॉक्स गिरने का टाइम निकाल लो और ट्रक का डिस्टेंस निकाल लो ऊपर से, फिर ये वाले ट्रक की एक्सेलरेशन से, ये द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, सुन लो ध्यान से। ट्रक इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे व्हाट यू फाइंड फ्रिक्शन कम है, तो ये फोर्स होगा आपका, पीछे जो फोर्स लगेगा इनर्शियल फोर्स m इंटू एटी माइनस फ्रिक्शन, माइनस कर देंगे तो बैकवर्ड फोर्स इज मोर बिकॉज ऑफ इनर्शिया, डिवाइड बाय मास विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स को कितना पीछे जाना है गिरने के लिए, 5 मीटर गिवन, यहाँ से ऐसे देखो हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, टाइम कुछ √20 आता है मेरे ख्याल से, 5 इंटू 10 कितना ये, अरे ये निकालना पड़ेगा तभी आएगा, तो टी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लो, फिर उतनी देर में ट्रक कितनी आगे चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक विल बी हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इनटू टी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन में जो टी स्क्वायर मिलेगा आपको इस वाले से, वो यहाँ पूरा एज इट इज कर दो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 2 है, जो टी स्क्वायर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए आपको टी निकालने के लिए आपको एफ एस मैक्स निकाल के इसमें बॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब इतना आपको, यू शुड बी able to do it after the explanation because they are your textbook problem, examiner can ask any of the question, ठीक है, ये कंप्लीट करके आंसर मैच कर लेना, कितना आंसर दिया, आई डोंट हैव द आंसर, ऑलराइट। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, देखो ये एक ट्रक, एक ये आपका डिस्क है,
Let us read it. This revolves with the speed this. What is this given? Can somebody tell me? What is that speed given? Sir, RPM. RPM. तो RPM क्या होता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो? किसको बोलते हैं RPM? Sir, rotations per minute or revolutions per minute. हाँ, तो क्या है? Which physical quantity it is? Which physical quantity it is? Is it angular frequency or something else? Sir, it is angular circular motion, like angular circular velocity. Anybody else? बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? Sir, ज्ञान बताएंगे? angular. Okay, let me ask others also. किसका नाम लिया था मैंने अभी? ज्ञानदा, can you tell me? Am I pronouncing your name correctly? Are you there? Respond. No response means you are not there in the class, है ना? If I am asking somebody and not responding means not in the class. Yes, Ipsita. Ipsita, are you there in the class? No response again. Your attendance will not be counted if you don't respond. If you put Sir? absenteeism. Yeah. Sir, Who? can you just tell me what you have done in this question, because there was a lag from my side. No, we have not done anything. I am asking from you only. I am asking from you only. What is this physical quantity? Anushka, you tell me. Ipshita and Gyanda both are absent in the class. Your attendance will not be taken. Simply joining and leaving, not responding means what? Not present in the class. Yes, Anushka, go ahead. Yes, sir, what you asked, can you repeat? Yeah, this, what is this quantity? Can you see the circle this? Yes, sir. What is this? Here they are written speed, but by seeing the unit, we can say what is this? ये स्पीड नहीं है, कभी कभी वो ऐसे लिख देते हैं, बट यूनिट देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. व्हाट इज दिस? बोलिए. व्हाट इज दिस? हाँ, यस, फ्रीक्वेंसी. इट इज फ्रीक्वेंसी. तो इस आरपीएम में दी हुई है, तो क्या करना पड़ता है? व्हाट वी हैव टू डू? फ्रीक्वेंसी का सिंबल वैसे तो न्यू होता है, हम लोग एफ ले रहे हैं बिकॉज न्यू लुक्स लाइक वी, देयरफॉर वी विल टेक फ्रीक्वेंसी एफ, सिंबल एफ फॉर 11th and 12th both classes. कितना है? 33. 1/3. 1/3. तो ये कितना हो जाएगा? 99 + 100/3 यूनिट. नहीं तो ये तो अभी आरपीएम है, बट आरपीएम इज नॉट द एसआई यूनिट. आरपीएम इज नॉट द एसआई यूनिट. तो क्या करना पड़ता है इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए? क्विकली बोलिए. Who will tell what to do? So into 1/60. हाँ, 60 से डिवाइड करना है ना. आरपीएम, रोटेशन पर मिनट. पर मीन्स डिवाइड, मिनट मीन्स इन 1 minute 60 seconds. तो यू हैव टू डिवाइड बाय 60 टू कन्वर्ट इट इनटू हर्ट्ज. क्या यूनिट बन जाएगी? रोटेशन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज. तो ये आ जाएगा आपका. कितना आ रहा है इसको? ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते क्या? 0 0 कैंसिल हो गया ये आपका, और ये 5 आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा? 9. इज इट ओके? 5/9. ठीक है. या So Nyanda Yeah. told me to inform you that her mic isn't working. ओके. tell her to fix her mic for the next question when I ask. ठीक है. तो yes, the frequency is this much. Now angular speed चाहिए हमें, because what we are going to do, we are going to deal with the centripetal acceleration. Centripetal acceleration में angular speed चाहिए होती. Therefore angular speed कितनी होगी?
ओमेगा कितना, ओमेगा का फार्मूला बताइए। 2 पाई एफ। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे ना, तुम लोग का टेस्ट भी तो ड्यू था आज। टुडे वी डिसाइडेड फॉर द वेक्टर्स टेस्ट, इट इज पोस्टपोन फॉर 1 day, it will be tomorrow. All right, vectors का Yes. टेस्ट होना था मंडे, it was supposed to be today, but since I did not remind you on Friday, therefore I'll just postpone for 1 day. Tomorrow it will be there. Vectors में complete vectors, ठीक है, vector addition, vector subtraction, dot product, cross product, you have to revise everything, ठीक है। तो Sir, omega is, yeah, sir, can we take the test day after tomorrow on Wednesday? no, tomorrow only. It was Sir, supposed to be because today. sir, tomorrow I'm No. not at all at home. I'm out of station. So No, but others are there, they will appear you. We cannot postpone, but now again, already 1 day postponement is there. Do you manage or just you skip? You have to just take the permission from ma'am also if you are missing the class. All right, so 2 pi f, तो f यहाँ से 2 pi f कितना है 5/9, so you can just 10 pi by 9 ऐसे छोड़ सकते हैं इसको। यूनिट क्या होती है एंगुलर स्पीड की, रेडियन पर सेकंड है ना, ठीक है। तो ओमेगा आ गया। तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, आगे देखते हैं। रेडियस इज 15, revolves with the speed this much and has the radius 15. तो ये रेडियस 15 है यहाँ तक, 15 सेंटीमीटर। The two coins placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center. दो कॉइन है, एक 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पर और एक 14 पर है, away from the center of the record. If the coefficient of friction is given 0.15, is given, which of the coin will revolve with the record? Which coin will revolve with the record? So both will have the tendency to be thrown outward because of the inertial force. Friction will provide the, in other words, friction will provide the centripetal force for their circummotion. दोनों के circummotion के लिए friction is responsible because they have the tendency to move outward. So friction is inward, that will provide the centripetal force. तो दोनों को centripetal force की कितनी requirement है? Friction कितनी? Friction, how much is the friction? Limiting friction निकाल लो, finding limiting friction है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे और उससे उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग एक्सेलरेशन। ओके, चलो बताओ क्या करना पड़ेगा अभी, बोलो इसके लिए, जस्ट टेल मी। मास इज नॉट गिवन है ना, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर ईच क्वाइन, तो इसको फर्स्ट क्वाइन दे देते हैं, इसको सेकंड देते हैं। तो AC1 क्या फॉर्मूला होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, बोलो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बताइए। ओमेगा स्क्वायर R1 फर्स्ट के लिए, इसकी रेडियस कम है, R1 है, दूसरे वाले की R2 है। तो यहाँ से आपको इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा AC1। ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 100 पाई बाई 9 का स्क्वायर। रेडियस कितनी दी है R1, फर्स्ट इज एट 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होगा 2, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन ऑफ, ये कैलकुलेट करना है आपको, मैं यहाँ पर थोड़े सा हेल्प कर देता हूँ आपको। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर ईच के लिए नहीं लिखते, फॉर फर्स्ट क्वाइन और दूसरा सेकंड क्वाइन के लिए। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर
AC2 will be omega. Omega दोनों के लिए सेम रहेगा ना. Disk is rotating same with the same omega for both the coin. तो इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओमेगा तो सेम है ना. तो AC2 ओमेगा स्क्वायर इज 100 पाई नहीं 10 पाई बाई 9 स्क्वायर इंटू इसकी रेडियस कितनी 14 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट है सेंटीमीटर एक्सलेशन की. नाउ दिस रिक्वायरमेंट हु विल फुलफिल, फ्रिक्शनल फोर्स विल फुलफिल. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है दोनों से फ्रिक्शनल फोर्स से हम एक्सलेशन निकालेंगे. सेंटीमीटर व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो सेंटीमीटर फोर्स निकाल लो चलो मास से मल्टीप्लाई करके. यहाँ पर देखो मास है दैट इज m, दोनों सेम है क्या? मास जो है दे आर नॉट मेंशन. तो मास m1 ले सकते हैं इसका उनके लिए फोर्स भी ठीक है. चलो यहाँ पर m1 m2 ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट देखो देयरफॉर m ले लेते हैं दोनों का मास m इंटू AC1. तो ये आपका ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर और सॉल्व कर लो. m के टर्म्स में आंसर आ जाएगा. ठीक है समथिंग m यहाँ पे कुछ आ जाएगा m न्यूटन और यहाँ पर भी सेंटीमीटर फोर्स m इंटू AC2. तो ये भी सॉल्व करने के बाद न्यूटन में आ जाएगा. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बोलो? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा Fs मैक्स? म्यू इंटू mg. तो म्यू 0.1 है 0.15 है. g 10 ले लेते हैं इंटू m. तो ये 1.5 m न्यूटन. ठीक है. तो अगर ये दोनों फोर्सेस ये भी 1.5 से कम है और ये भी 1.5 m से कम है तो नन ऑफ देम विल स्लाइड है ना. अगर ये सपोज दिस इसकी रिक्वायरमेंट मोर है यू कैन फाइंड आउट. दोनों को निकालना पड़ेगा. इसकी रिक्वायरमेंट जो है सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट इस फ्रिक्शन से कम है तो दिस विल स्लाइड दिस विल मूव और ये स्लाइड हो जाएगा बैकवर्ड में. इफ दोनों की रिक्वायरमेंट जो है 1.5 से ज्यादा है तो बोथ विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैकवर्ड. तो ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं है ना. फ्रिक्शन जो मास नहीं दिया था इसलिए हम लोगों ने m के टर्म्स में निकाल दिया उसको. m के टर्म्स में जो भी मास होगा वो दैट विल बी वी कैन पुट इट. अगर डिफरेंट होगा तो इसको m1 करना पड़ेगा इसको m2 करना पड़ेगा. दोनों फ्रिक्शन निकालने पड़ेंगे दोनों के अलग अलग कंपेयर करने पड़ेंगे. तो फ्रिक्शन शुड बी मोर for not to slide. Fs max should be equal to or greater than centripetal force. फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए. अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो वो स्लाइड हो जाएगा. ठीक है. So that's how you have to calculate. तो इसमें भी कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा है बट यू शुड नो द मेथड हाउ टू गेट इट. मेथड यही मेथड है और थोड़ा यू कैन जस्ट थिंक योर वे. यू कैन जस्ट डू इट विद योर मेथड आल्सो बट दिस इज द वन आई हैव टोल्ड यू. Crux of the matter is frictional force should be more than the centripetal requirement of centripetal because friction force is going to give the centripetal force. जैसे हम टर्न करते हैं ना रोड सपोज हमने रोड पे टर्निंग किया है ना. फ्रिक्शनल फोर्स should be sufficient to provide that
सेंटीपिटल फोर्स फॉर टर्निंग। कभी कम होता है तो गाड़ी स्किड हो जाती है, गिर जाते हैं, whether it is साइकिल और टू व्हीलर। कार है तो वो स्किड कर जाएगी, साइकिल है टू व्हीलर है तो गिर जाता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है उसका। कार में टर्न तो नहीं हो सकता बट स्किड हो सकती है, उसके टायर स्लाइड करके आगे जा सकते हैं अगर फास्ट टर्न की तो। यानी इट डजंट हैपन क्योंकि वेट ज्यादा होता है कार का, फ्रिक्शन सफिशिएंट मिल जाता है। नॉर्मली एक्शन इज मोर देयर, तो फ्रिक्शन इज मोर देयर, तो वी गेट द रिक्वायर्ड। तो फ्रिक्शन शुड बी मोर देन द रिक्वायरमेंट, देन द सेंटीपिटल फोर्स आर इक्वल एट लीस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके इक्वल हो या मोर हो फॉर सेफ टर्निंग। सेफ यहाँ पे टर्निंग तो नहीं है, सेफ रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग। ऐसे एक टॉपिक है अपना, वी विल डू इट टुमारो। जब हम टर्न करते हैं ना रोड पर, कितनी स्पीड होनी चाहिए सेफ स्पीड फॉर टर्निंग, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग। तो इस तरह का ही सिचुएशन आएगी वहां पर, है ना। ये हम लोग एफ एस मैक्स शुड बी ग्रेटर देन सेंटीपिटल इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, उससे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ you can relate that topic, and that question can be, this question can be related with the topic when we cover it tomorrow. ठीक है, तो ये ट्राई करो, इसको कैलकुलेट कर लो, फिर देखो कौन सा स्लाइड होगा जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा उसमें, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग बैकवर्ड। ठीक है, ऑलराइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट we have no time now. ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप कर दें। तो यू कैन कंप्लीट, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ये तुम कैलकुलेट करके ये वैल्यू कंक्लूजन लिखना है आपको। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होमवर्क 2। आई थिंक फर्स्ट एंड टू ही ओनली, बीच में कोई और था क्या? नो, और यू कैन जस्ट डू इट, यू कैन थिंक easier method, you can do with your own method. I don't say you do it like this. You can develop your easy method to conclude. That's all from my side. Anything you want to clarify here? Tomorrow we'll have the test of vectors. That's all.